Hello, bankers. A very very good evening to all of you. Welcome back. Welcome to JIB CIB Prep. आशा करते हैं आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे. Guys, आज के इस सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केस स्टडीज बेस्ड ऑन आवर very first unit, which is forex business and exchange rate. Okay, basically the sequence is first we are going through the concept, then unit wise MCQs, and then final one is case studies. Okay, so we already done with the concept part of this particular unit, as well as unit wise MCQs are also discussed right now. Like what type of cases you may face from this particular unit, that we are going to discuss in this particular session, and we will do the same practice for all the 35 units of your BFM subject, right? Guys, very first unit and a high probability of getting case study from this particular one, usually based on exchange rate mechanism and derivative. ठीक है, तो ये दो एरियाज हैं जो आपका केस स्टडी के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे. वन इज लाइक हर समय आपका हर एग्जामिनेशन के अंदर आपको इसके ऊपर केस स्टडी मिलता है. ठीक है, सो समटाइम दे विल आस्क यू like what quote you'll like what price you'll quote to your exporter or importer for the export bill or import bill. ठीक है, मैक्सिमम टाइम जो आपका पूछा जाता है, sometime it is based on cross rate calculation and sometime it is based on hedging strategy. ठीक है, so the arbitrage opportunities available or not, or hedging is available, or like what will be the price or what price you'll quote to your customer if they want to hedge some contract and all. Okay, so we are going to discuss all the three type of or four type of case studies based on this particular unit with the help of multiple questions. Okay, so it is generally part of your question without option. In some question I have given you option as well, but in your examination you will get question without options. Okay, so we will start with very first question. Please pay your attention, try to understand these particular one. I'll share the PDF also. ठीक है, तो जिससे आप समझिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी चैलेंज आता है, सो यू कैन कनेक्ट मी ओवर देयर. ठीक है, एंड like once we will done with the entire module A ना, so I'll conduct one live class on our application. So वहाँ पे हम लोग एक बार interaction करेंगे. It will be for like 2 or 3 hours. तो जिसमें हम सब लोग, जब आपका छुट्टी होता है, I'll conduct a poll. ठीक है, तो उसमें जो भी केस स्टडीज मैं आपको कराऊंगा उसके ऊपर एक काइंड ऑफ ओवरव्यू आपका डिस्कशन एंड ऑल वो हम लोग कर लेंगे, तो जिससे आप अपने डाउट भी पूछ सकते हैं. तो एक क्या होगा कि एक समय लाइक आई एम डिलीवरिंग दिस पर्टिकुलर लेक्चर, यू आर ट्राइंग टू make your understanding, then finally that discussion ki why we came to this particular one and what other type of question you may face from that particular topic and all. तो इस तरीके से हम लोग आपका डिस्कशन रखेंगे एंड विल डू इट फॉर ऑल द 35 unit of BFM subject as well as in other subject where you generally see the numericals and all. We will do this. Okay, चलो तो start करते हैं सेशन को with very first question. If the spot rate USD INR is 83.25, inflation in US is 3% and inflation in India is 5%. So what will be the approximate expected exchange rate after 1 year based on purchasing power parity? So whenever we calculate by using purchasing power parity, whenever you calculate forward rate by using purchasing power parity, so how we calculate forward rate? So forward rate is equal to your spot rate into 1 plus inflation in India divide by 1 plus inflation in US. Okay, so if you'll solve this particular equation, so spot rate is how much? 83.25. Then we have 1 plus inflation rate in India is how much? 5%, which is equal to 0.05, and in US it is 3%, so 1 plus 0.03. Okay, so the outcome of this particular one will be answer for this particular question. Okay, so अगर हम इसको solve करते हैं, so 1.05 divided by 1.03, which is equal to 1.01, ठीक है, into 83.25, so it is equal to 84.86 something. ठीक है, so as per the given number, हाँ 84.86 means 87. ठीक है, so it is the approximate will go around this. ठीक है, so what will be your correct answer?
84 point, exactly it is coming 84.87, ठीक है. सो इट दिस इज द वन, ठीक है, जो आपका एक साल बाद का प्राइसिंग होगा, ठीक है. सो दिस इज द वे, बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन द परचेसिंग पावर पैरिटी. तो और ये आपका आर्बिट्राज में भी यूज होता है सेम फॉर्मूला आपका, ठीक है. तो जिसको आपको ध्यान रखना है. सो दिस इज ओनली अबाउट द फॉर्मूला इटसेल्फ, ठीक है. अगर आप इसको याद रखेंगे तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे. नेक्स्ट वन, अ कंपनी एंटर्ड इनटू यूएसडी आईएनआर नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड टू सेल 1 लाख यूएस डॉलर, ठीक है, टू सेल 1 लाख यूएस डॉलर एट 83, ठीक है, INR. If the actual spot rate at maturity is 85, so what is the cash settlement, ठीक है. तो अब पहले तो ये कौन सा क्वेश्चन को समझिए, ठीक है. सो कंपनी सेल 1 लाख यूएस डॉलर एट 83, ठीक है. तो 83 पे उन्होंने आपका इसको सेल किया, ठीक है. तो दैट मीन्स they were kind of bearish on that particular currency and it went in their, as per their prediction, to 85. That means they made a profit of 2 into 1 lakh, so it is 2 lakh. Okay, so 2 lakh का इनका आपका क्या है, प्रॉफिट है, ठीक है. सो हाँ, सो ऑप्शन 2 lakh INR received by the company should be right answer for this particular question. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था. नेक्स्ट वन, if a spot rate of USD INR is 83, 6-month forward rate is 86, ठीक है. The US interest rate is 2% and India interest rate is 6%. So what is arbitrage opportunity in INR for investor with 1 lakh US डॉलर, ठीक है. तो अब देखो ये क्वेश्चन भी आपका जो पीपीपी वाला कॉन्सेप्ट है उसी के साथ, ठीक है. सो फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू स्पॉट रेट इनटू 1 प्लस इंटरेस्ट in India, ठीक है, interest rate in India, 1 plus interest rate in US. Okay, so if you solve this particular one, spot rate is how much, 83 into 1 plus India's interest rate is 6%, ठीक है, so 0.06. 1 plus US interest rate is how much, 0.2%, 0.02. So if we solve this particular one, it will come around, कितना जाएगा आपका ये, so it will go around 80, 1.06 divided by 1.02, so it is 1.039 into 83, so it is 86.25, ठीक है, 86.25, ठीक है. So this is the forward rate. So it is similar to this particular one, ठीक है. Approximate numbers, we reach to the approximate numbers. That means there is no arbitrage opportunity available in this, ठीक है. तो फॉरवर्ड रेट आपका कितना था, इसी के अराउंड था. और आपका एक्चुअल जो आपका, अगर हम कैलकुलेशंस के हिसाब से भी जा रहे हैं, ठीक है, so with the help of this interest rate calculation, so again we are reaching to the same numbers. That means there is no arbitrage, so there is no arbitrage opportunity in this particular situation as well, right. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वन आपका, an inflow of 50,000 US dollar has been received by a telegraphic transfer for credit to exporters account, ठीक है, representing an advance payment for exporters, ठीक है. That means the credit has been reflected in the nostro account statement received from the New York correspondent. So what exchange rate would you quote to the customer if the market rate is 85.10? I hope everybody is aware about these particular things. कॉन्सेप्ट क्लासेस में हमने इनको काफी अच्छे से डिस्कस किया था. सो व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है, इस कोटेशन का, ठीक है. सो बायर वांट टू बाय एट द, सो बायर प्राइस इज आपका 85.10 एंड सेलर वांट टू सेल इट एट 85.15, ठीक है. तो दिस इज द वन. सो एज यू कैन सी इट इज फॉर एक्सपोर्ट बिल. सो एक्सपोर्ट बिल्स मीन्स you have to quote the buy rate, so that means your answer for this particular question will be this one, ठीक है. So buy rate is 85.10, ठीक है. So import bill, so आपका export bill is equal to buy and import bill is equal to sell. इस तरीके से भी आप इनको याद रख सकते हैं, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है. So in this case, exchange quoted in typically based on the market rate, so 85.1015. So अगर हमें buying rate के लिए आपका करना है, so buying rate will be 84.10, ठीक है. So buying rate, this rate is at which bank buy USD from the customer, so that is 85.10, which will be answer for this particular question, export bill.
एंड आपका इंपोर्ट बिल द सेलिंग रेट इज 85.10, ठीक है। और आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, अगर आप बाय और सेल में थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, सो बायर ऑलवेज वांट टू बाय एट लोअर प्राइस एंड सेलर ऑलवेज वांट टू सेल इट एट हायर प्राइस। इंपोर्ट बिल दैट मींस आपका सेल, एक्सपोर्ट बिल दैट मींस इट इज बाय, ठीक है। इस तरीके से आपको बाय रेट कहां पे लगेगा, सेल रेट, थोड़ा छोटी चीजें हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। जो कोर कॉन्सेप्ट आपका होता है, ठीक है, लाइक व्हाइल यू कैलकुलेट द बाय, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक चीज बताया था ना, फॉरवर्ड, तो दिस इज द काइंड ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी कॉन्सेप्ट इन नॉट, अगर इसी को आप कैलकुलेट करेंगे, जैसे मे बी विल गेट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट वन ऑल्सो, ठीक है। सो फॉरवर्ड रेट और फ्यूचर रेट इज इक्वल टू आपका स्पॉट रेट, ठीक है, स्पॉट रेट प्लस प्रीमियम इफ देयर इज डिस्काउंट माइनस, इन केस ऑफ आपका बाय रेट इट इज यू हैव टू माइनस प्रीमियम एज सॉरी आपका सॉरी प्रीमियम माइनस आपका मार्जिन, ठीक है, सो मार्जिन आपका, ठीक है, इस तरीके से। और इन केस ऑफ सेल रेट, ठीक है, सो इन दैट केस फॉरवर्ड रेट विल बी आपका स्पॉट रेट, देन वी हैव प्लस प्रीमियम माइनस आपका मार्जिन, सॉरी प्लस मार्जिन आपका, इस तरीके से, जो जिनको आपको थोड़ा सा लॉजिकली याद रखना है, ठीक है। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन। हाँ, दिस इज द क्वेश्चन जो आपको हेल्प करेगा, जैसे मैंने क्या बोला आपको, हाउ यू विल डिटरमाइन द फॉरवर्ड रेट और फ्यूचर रेट, सो इट इज स्पॉट रेट, ठीक है, स्पॉट रेट प्लस आपका प्रीमियम, और अगर डिस्काउंट है तो माइनस करोगे, ठीक है। प्रीमियम और डिस्काउंट का खेल याद है ना, ठीक है। लेट्स से देयर इज अ करेंसी, कितना है आपका इसका कोटेशन 80, द स्पॉट रेट इज दिस, ठीक है। स्पॉट रेट क्या है आपका, देयर इज यूएसडी आईएनआर, यूएसडी आईएनआर, ठीक है। स्पॉट रेट इज 82.4550, ठीक है। सो अब ये आपका स्पॉट रेट है, दिस इज स्पॉट रेट। अगर ये कोट किया गया है 3 मंथ लेटर, the quotation is something like this 82.1015, that means this currency is in discount, ठीक है। तो when your spot, जैसे ये आपका इस तरीके से quotation, ठीक है, so when your spot rate is greater than your forward rate, so it is said to be in discount। और आपका this is a case of discount, ठीक है। प्रीमियम का केस कब होगा, when it will be प्रीमियम केस, लेट्स से 3 मंथ एक और आपका कॉन्ट्रैक्ट है, तो जहां पे quotation is like suppose that 83.2025, this is the case like when your forward rate is greater than your spot rate, so it is in premium, ठीक है, इसका मतलब है ये प्रीमियम में, ठीक है। तो प्रीमियम और डिस्काउंट का केस, ये हमने कॉन्सेप्ट के बिना बताइएगा, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है, तो पहले कॉन्सेप्ट क्लासेस को पढ़िए, फिर यूनिट वाइज एमसीक्यूज, तब फाइनली इस पे आइए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, on 15 September, a customer requested for booking a forward contract for export bill 2 lakh US dollar to be realized in the month of December। मैंने आपको बताया था कि अगर वो खाली स्ट्रेट फॉरवर्ड मंथ का नाम लिखेगा, so you have to assume it is first of the month, ठीक है। first of the month मतलब 1 दिसंबर के लिए, that means in this particular case you will add premium for the month of November, ठीक है। इसका रिलेशन ये बनेगा। so the given the spot rate is this and प्रीमियम इज दिस एंड मार्जिन इज दिस, ठीक है। अब कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं फॉरवर्ड रेट फॉर लाइक फॉर द इनवर्ड रेमिटेंसेस बाय केसेस, ठीक है। हम लोग कैसे करेंगे, आपका स्पॉट रेट प्लस आपका प्रीमियम माइनस मार्जिन, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन जो सॉल्व होगा, ठीक है। अगर डिस्काउंट में है करेंसी इस तरीके का, जैसे ये प्रीमियम ना होकर डिस्काउंट दिए हैं, तो आप उसको माइनस करोगे, ठीक है, इस सिचुएशन में। इन केस ऑफ आपका सेल रेट, वहां पे क्या होगा, स्पॉट रेट प्लस प्रीमियम प्लस आपका मार्जिन, बिकॉज व्हेन वी सेल द करेंसी वी जनरली रिसीव द मार्जिन इनिशियली, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे इट्स अ केस ऑफ इट्स अ एक्सपोर्ट बिल, सो इट्स अ केस ऑफ यू हैव टू डिटरमाइन द आस्क रेट, ठीक है। तो आस्क रेट क्या होगा इसमें, आपका स्पॉट रेट कितना है 82.45, ठीक है। प्रीमियम इज हाउ मच, 1 दिसंबर है तो हमें नवंबर का प्रीमियम लेना होगा, सो नवंबर का प्रीमियम इज हाउ मच 25, ठीक है। ये बाय साइड प्रीमियम, सेल साइड प्रीमियम, ठीक है। सो प्लस 25, ठीक है, प्लस 0.25, तो ये टोटल कितना हो गया आपका 82.70, ठीक है। सो 82.70 माइनस मार्जिन, ठीक है। सो मार्जिन कितना दिया है आपको इन दिस पर्टिकुलर करेंसी, मार्जिन इज इक्वल टू आपका 0.05, ठीक है। सो योर आंसर, द रेट यू आर गोइंग टू कोट टू योर कस्टमर इज दिस, ठीक है। ये आपका रेट है जो आप कस्टमर को कोट करने वाले हैं, ठीक है, दैट इज 82.65। अब ये कई बार ये जो मार्जिन है ना, दिस मार्जिन दे विल मेंशन कि इट इज ऑन स्पॉट रेट, अगर उसने स्पॉट रेट पे बोला है
तो आप पहले मार्जिन को माइनस करोगे उस तरीके से कैलकुलेशन आपका, ठीक है, सिंपल सा। या कई बार वो परसेंटेज में आपको दे देगा कि मार्जिन इज 0.15% ऑफ स्पॉट रेट, सो यू हैव टू कैलकुलेट 0.15% ऑफ स्पॉट रेट, ठीक है, इस तरीके से। अगर नॉर्मल वैल्यू दिया है तो माइनस करोगे, ठीक रहेगा। बट अगर उसने परसेंटेज में दिया है और स्पॉट रेट बोला है, अगर आप इस पे कैलकुलेट करोगे तो देयर विल बी सम डिफर इन नंबर्स, ठीक है। तो इस तरीके से छोटा सा इसको आपको ध्यान रखना है। अंडरस्टूड गाइस? आगे बढ़े, ठीक है। तो आपका फॉर कैलकुलेटिंग फॉरवर्ड रेट परचेज कॉन्ट्रैक्ट इन नवंबर मंथ, वाई वी विल यूज, हमने समझा, ठीक है, स्पॉट रेट इज दिस एंड दिस आपका 82.65, ठीक है। इतना समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, चलो। On March 1st, 2025, a customer requests to book forward contract for an export bill, 1 lakh US dollar, which will be realized in the month of June. So, USD INR spot rate is 83.5055. Forward premium is given under this. So you have to calculate what would be the forward exchange rate for booking the forward contract for the customer in June 2025. Similar set of question, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपका स्पॉट रेट इज हाउ मच? अब देखो यहाँ पे मार्जिन नहीं दिया गया, ठीक है। सो अगर नहीं दिया गया, विल इग्नोर दैट पर्टिकुलर वन। सो स्पॉट रेट इज हाउ मच? आपका स्पॉट रेट इज आपका कितना था? 83 पॉइंट, इट्स अ एक्सपोर्ट बिल, दैट मीन्स यू हैव टू डिफाइन द बाय रेट। सो 83.50 प्लस आपका प्रीमियम, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो अ केस ऑफ प्रीमियम। अब देखो प्रीमियम जून पे है, सो दिस कॉन्ट्रैक्ट विल बी फॉर द जून 25, सो वी विल अज्यूम 1 जून, ठीक है। सो नाउ यू विल टेक प्रीमियम फॉर द मंथ ऑफ मई, सो प्लस आपका 0.15, ठीक है। तो क्या होगा? 83.65 will be right answer for this particular one, ठीक है। So this is the rate which we are going to quote to our customer, ठीक है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पूछेगा, so इसी में कई बार आपको वैल्यू भी पूछ सकता है। So what we will do, 1 lakh US dollar into 83.65, so equal to whatever the amount is, 83 lakh 65,000. So that will be your answer for this particular one, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपके बुक्स के हैं, पहले उनको देखते हैं जल्दी से, फिर हम आगे के क्वेश्चंस पे आते हैं। सो inflow of 1 lakh telegraphic transfer credit exporters account being advance payment for customer receive this, what rate you will quote to your customers in this particular case? क्या रेट कोट करेंगे आप लोग इस केस में? तो आप क्या रेट कोट करेंगे? दिस इज द रेट, ठीक है, विच यू आर गोइंग टू कोट, ठीक है। सो एक्सपोर्ट बिल है आपका, सो एक्सपोर्ट बिल है तो 76.09, दिस इज द रेट विच वी आर गोइंग टू कोट टू आवर कस्टमर, ठीक है। सो 76.09, दिस इज द बाय रेट, एंड सेल रेट क्या होगा? 11, सो दिस इज द रेट विच वी आर गोइंग टू कोट। अगर आपका इसके अलावा जैसे प्रीमियम है तो उसको ऐड कर लेंगे, अगर आपका मार्जिन है तो उसको आपका माइनस कर लेंगे, ठीक है। सो 76.09 लेस आर मार्जिन, ठीक है, जो भी आपका है, एज एप्लीकेबल टू अराइव दिस, ठीक है। तो सिंपल सा आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए अगला, दिस वाज द क्वेश्चन। ऐसा ही एक सिमिलर क्वेश्चन जो इस बार के एग्जामिनेशन में पूछा गया था, सेम क्वेश्चन है, देयर इज नथिंग चेंज, ठीक है। बस थोड़ा सा उन्होंने आपका कैलकुलेशन बढ़ा दिए, ठीक है। कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। फर्स्ट आपको अपना जो रेट आप कोट करेंगे, वो बाकी के सारे नंबर्स हैं, 5 लाख इंटू जो भी रेट आप निकालेंगे, आपको उस पर 120 डेज का इंटरेस्ट रेट, ठीक है, और आपका जो मार्जिन है वो माइनस करेंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान से सुनो, 21 योर एक्सपोर्टर मीन्स आपका बाय रेट पे हम इसको कैलकुलेट करेंगे 5 लाख रुपीज, 5 लाख डॉलर, ठीक है। ड्रॉन 120 डेज ऑफ शिपमेंट, इसको अभी इग्नोर करो, ठीक है। सो कंप्यूट द एप्लीकेबल रेट, जहां पे आपके पास डेटा है मार्जिन इज 0.15% ऑफ द स्पॉट रेट, ठीक है। स्पॉट रेट इज आपका 75.1415 एंड प्रीमियम फॉर जनवरी इज 4546, ठीक है। क्लियर कट प्रीमियम दिया हुआ है, ठीक है। रेट टू बी कोटेड नियरेस्ट 0.25 एंड रुपी अमाउंट टू बी राउंड ऑफ, ठीक है, 25 के अराउंड हम उसको करेंगे। एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट इज ये 120 डेज का, मतलब 5 लाख इंटू जो भी रेट आप देंगे उस पर आपका 8.50% का इंटरेस्ट, ठीक है, फॉर 180 डेज। एंड कमीशन आपका पॉइंट, जो भी उसके बाद जो अमाउंट होगा उस पर कमीशन हम इतना चार्ज करेंगे, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वी विल बी कैलकुलेटिंग आर कोट द अमाउंट विच वी आर गोइंग टू कोट टू आर कस्टमर, ठीक है। दैट इज आपका स्पॉट रेट इज 75, ठीक है। स्पॉट रेट कितना है? सॉरी,
स्पॉट रेट कितना है हमारा, स्पॉट रेट इज इक्वल टू आपका 75.14, ठीक है। सो 75.14 पहले कैलकुलेशन ये होगा। दूसरा इसमें आपको क्या करना होगा, सेकेंड वन इज मार्जिन, दिस इज द पॉइंट, सेकेंड पॉइंट विच यू हैव टू टेक फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वन, कि आपको यू हैव टू ऐड मार्जिन, ठीक है। सो सॉरी माइनस मार्जिन, सो मार्जिन कितना है हमारा आपका 0.15%, 0.15% ऑफ स्पॉट रेट, ठीक है। तो 75.14 का जो भी मार्जिन आएगा दैट वी विल डिडक्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है। तो ये हमारा आपका हो जाएगा। देन वी विल ऐड, इसके बाद हम लोग क्या ऐड करेंगे, आपका प्रीमियम। सो प्रीमियम इज हाउ मच, आपका 0.45, ठीक है। सो प्रीमियम आपका ऐड होगा 0.45, ठीक है। तो इस तरीके से यू विल गेट टू नो अबाउट योर आपका द रेट विच यू आर गोइंग टू कोट टू योर कस्टमर, ठीक है। तो यहां तक का जर्नी कैसा है आपका, दोबारा से सुनिए। सबसे पहले स्पॉट रेट, ठीक है। देन आपका मार्जिन को हम उसमें कैलकुलेट कर लेंगे, बिकॉज मार्जिन क्या दिया है, स्पॉट रेट पे परसेंटेज में दिया, ठीक है। सो 75.14 का 0.15% जो भी मार्जिन होगा वी विल डिडक्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वन, प्लस आपका प्रीमियम ऐड करेंगे, ठीक है। सो ये जो आपका दिस प्लस दिस जो भी अमाउंट निकलेगा, सो दैट इज द रेट which we are going to quote. अब this let's say this is the x amount, ठीक है। x into जो भी आपका है x into कितना, $5 लाख, ठीक है। सो $5 लाख, तो ये आपका ओवरऑल वैल्यू हो जाएगा। देन दिस इज अ लोन फॉर द एक्सपोर्टर हैज टेकन लोन फॉर 120 days एट द रेट ऑफ कितने पे, आपका 8.50%, ठीक है। सो 8 आपका जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा एट द रेट ऑफ 8.50% फॉर 120 days। देन माइनस कर लेंगे हम लोग आपका कमीशन कितने से, आपका 0.0625% ऑफ द आउटस्टैंडिंग बैलेंस आफ्टर डिडक्टिंग दैट इंटरेस्ट आपका। तो इस तरीके से जो कैलकुलेशन आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगी। तो देखो सबसे पहले आपका क्या है, कैलकुलेट, सॉरी फर्स्ट वन इज कैलकुलेशन ऑफ बिल बाइंग रेट, ठीक है। सो स्पॉट रेट आपका 75.14, ठीक है, 75.14 लेस मार्जिन, ठीक है। मार्जिन हमें क्या करना है, माइनस करना है, क्योंकि परसेंटेज में दिया था इसलिए हमें, अगर उसने स्पॉट रेट बोला तो वहीं पे आपका, ठीक है। अगर परसेंटेज में नहीं होता ना तो हम बाद में भी माइनस कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट परसेंटेज में है, स्पॉट रेट लिखा है, सो इमीडिएटली हैव टू, सो 75.14 का एट द रेट 0.15% इज दिस, तो द न्यू वैल्यू, ठीक है, दैट इज दिस। अब उसने क्या बोला था, आप राउंड ऑफ उसको करो कितने में, 25 के उसमें, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से कुछ बन रहा है, ठीक है। पॉइंट मतलब इन्होंने राउंड ऑफ करके आपका 75.0270, ठीक है, इस तरीके से। एड प्रीमियम, ठीक है, प्रीमियम हमने ऐड किया, प्रीमियम कितना था, 0.45, ठीक है। सो 0.4500, ठीक है। सो दिस इज द अमाउंट, दिस इज द रेट विच वी आर गोइंग टू कोट टू आवर कस्टमर, ठीक है भैया, इतने में आपको $1 मिलेगा, ठीक है। नाउ अब रिक्वायरमेंट कितने की है, $5 लाख की, ठीक है। सो दिस 75.4770 into $5 लाख, ठीक है। तो आपका अगर हम ये करते हैं, सो इट रीज टू 3,77,000, सॉरी आपका 3,77,38,500, ठीक है, दिस इज द वैल्यू। अब इंटरेस्ट उसने ये अमाउंट किसने पे लोन पे लिया है, ठीक है, 120 डेज के लिए, तो इस पे इंटरेस्ट कितना था, 8.50%, सो दिस इज द अमाउंट, ठीक है। तो इसको हम इसमें से क्या करेंगे, आपका डिडक्ट कर लेंगे। देन कमीशन कितना है आपका, कमीशन इज आपका पॉइंट जो भी अमाउंट आपका दिया गया था ये, ठीक है, ये हम लोग देखें तो पेमेंट, so amount payable to exporter customer is after deducting these two 3,66,60,303 आपका। so this is the answer। तो देखो मतलब 2 मार्क्स का एफर्ट्स है, बट इसमें ना कोई चैलेंज नहीं है, ठीक है। ये दीज आर द नंबर्स जो आपको थोड़ा कंफ्यूज करेंगे, प्रैक्टिस इज द ओनली वन, ठीक है। तो जैसे एज आई सेड कि पहले हम लोग एक बेसिक आप बनाएंगे, जब आई विल कंडक्ट अ लाइव क्लास मोस्टली ऑन एप्लीकेशन, ठीक है। तो जहां पे हम लोग आई विल कम अप विद, वी विल सिट फॉर 2 hours 3 hours, ठीक है, आराम से ये पूरे मॉड्यूल के जितने हैं एक साथ में आपका बना दूंगा, उनको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, जिससे आपके ये और नए चैलेंजेस, नए क्वेश्चंस भी आपको डाल दूंगा जिनको आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। June 1st, a customer request to book forward contract for retirement of import bill. अब import bill है means it is a case of you have to quote the sell rate, ठीक है। So आपका bid rate, ठीक है, for USD 1 lakh US dollar due on 15 September, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, पहला एक तो ये एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिल है, मतलब आपको सेल रेट काउंट करना है। दूसरा
it is they have clearly mentioned on 15th mid of September. That means आपको जो 15 दिन सितंबर का है और अगस्त मंथ का जो दोनों का ही प्रीमियम इसमें ऐड करना होगा, ठीक है। सो गिवन द स्पॉट रेट इज आपका 75.279 दिस, प्रीमियम आपका जैसे जून का 10, जुलाई का 10, आपका अगस्त का 10 एंड सितंबर का 10 एंड अगस्त आपका ये जो 15 to 15 है उसका 10, ठीक है। मार्जिन इज 0.25% ऑफ स्पॉट रेट, तो सेम चीज आपका मार्जिन इसमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा, ठीक है। सो इन दिस केस हाउ यू कैलकुलेट फॉर सेलिंग, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, जैसे व्हाट विल बी द बाइफर्केशन ऑफ द कैलकुलेशन, ठीक है। तो स्पॉट रेट हम लोग आपका सेल रेट लेंगे कौन सा, दैट मींस 75.29, ठीक है, दिस इज द रेट, ठीक है। देन आपका इसके बाद हमारे पास जो अगला पॉइंट है, यहाँ पे एक जो अगला गेम वाला पॉइंट है, दैट इज योर मार्जिन। तो मार्जिन को समझ लो, सॉरी प्रीमियम, प्रीमियम आपका देख हमने रेट लिया ये, ठीक है, फर्स्ट। दूसरा प्रीमियम आपका हमें 15 सितंबर का, तो अगस्त मंथ का पूरा प्रीमियम होगा। अगस्त का प्रीमियम कितना है आपका, स्पॉट अगस्त का प्रीमियम है आपका सेलिंग साइड पे 0.34, ठीक है। तो प्रीमियम आपका कैसे ऐड होगा इसमें, हाउ यू विल कैलकुलेट प्रीमियम, सो प्रीमियम इज इक्वल टू पहला तो आपका 0.34 प्लस आपका जो सितंबर मिड तक का है वो भी, ठीक है। सो दैट इज आपका 7, ठीक है। सो 0.07, दैट मीन्स जो ओवरऑल प्रीमियम आप इसके लिए लेंगे वो कितना लेंगे, 0.41, ठीक है। तो ये आपका प्रीमियम इसमें होगा, ठीक है। देन आपका जो भी इसका लाइक मार्जिन इज, मार्जिन कितना है हमारा एट द रेट ऑफ 0.20% ऑफ स्पॉट रेट, ठीक है, इस तरीके से। और इसके अलावा बाकी और कुछ इसमें खास है नहीं, ठीक है, सिंपल। अब देखो इसको एक बार सोल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट वन आपका स्पॉट रेट, ठीक है, कहाँ गया, हाँ, स्पॉट रेट इज आपका 75.29, ठीक है, हमने सेलिंग रेट आपका लिया है इसमें, ठीक है, 29 आपका 75.29, ठीक है, 75.29, इसको हाईलाइट कर देता हूँ जिससे दिख जाए उसमें, ठीक है। सो दिस इज द वन, ठीक है। दूसरा प्रीमियम आपका, प्रीमियम स्पॉट प्रीमियम है तो ऐड होगा, ठीक है। तो क्या है आपका, जैसे स्पॉट अगस्त आपका है कितना 34, ठीक है, 34, और आपका जो अगस्त टू सितंबर वाला आधे महीने का है दैट इज 7, तो टोटल प्रीमियम है आपका 41, ठीक है। तो टोटल हमारा कितना चला गया आपका 75.70, ठीक है। सो दिस प्लस दिस आपका, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है, मार्जिन। अब इट्स अ केस ऑफ सेल, ठीक है। अभी तक हम लोग बाय रेट के सब आपका कैलकुलेट किया था, बाइंग के केस में आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है, ठीक है। इन केस ऑफ व्हेन वी बाय द कॉन्ट्रैक्ट, फॉर्मूला हम कैसे बना लेते हैं, फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू आपका स्पॉट रेट, ठीक है, प्लस प्रीमियम माइनस मार्जिन, ठीक है, फॉर दी आपका इसके लिए एक्सपोर्ट बिल के लिए, ठीक है। एक्सपोर्ट बिल आपका मतलब दैट इज वेयर यू आर गोइंग टू कोट द बाय रेट, ठीक है। बट ये क्या है आपका इंपोर्ट बिल का, ठीक है। इंपोर्ट बिल के केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, सो हाउ वी आर सॉल्विंग दिस वन, ठीक है। सो फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू स्पॉट रेट प्लस प्रीमियम, अगर डिस्काउंट होगा तो माइनस करना होगा, ध्यान रखें इस बात का, ठीक है, प्लस मार्जिन, ठीक है। सो यू आर गोइंग टू रिसीव दैट पर्टिकुलर मार्जिन, तो इस तरीके से जो आपका ये सॉल्व होगा, ठीक है। तो इन्होंने मार्जिन को क्या किया आपका ऐड किया 0.20% ऑफ द स्पॉट रेट विच इज 1, इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ क्या किया है, आई डोंट नो कि एग्जैक्टली ये कैलकुलेशन आपका किस नंबर पे पहुंच रहा है, ठीक है। मतलब 0.20% ऑफ स्पॉट रेट होना चाहिए था इसका, अगर ये 0.15 है दैट इज ट्रू, अगर इन्होंने इस पे कैलकुलेट किया तो गलत होगा आपका। तो दिस इज द रेट विच वी आर गोइंग टू कोड टू आवर कस्टमर, ठीक है, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन, योर फॉरेन एक्सचेंज करस्पॉन्डेंट मार्जिन ऑफ नोस्टो रुपी with bank want to fund account to purchase 30 million US dollar against 30 million rupees against US dollar, assuming the USD INR interbank market is 75.25502650, what rate would quote to a correspondent bank in this, ठीक है। तो ये देखो इंपोर्ट रेट है, हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, व्हाट विल बी योर कैलकुलेशन फॉर दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है। 75.2550 इंटू आपका 30 मिलियन, ठीक है, सो 30 मिलियन रुपीज, तो आउटकम विल बी योर आंसर फॉर दिस वन, ठीक है। सिंपल सा उन्होंने आपको रेट पूछा है, तो रेट इज आपका 75.50, ठीक है, यही था ना, हाँ 75.50, सो दैट इज 250, सॉरी, ठीक है। सो दिस इज द रेट इनटू अगर आप करोगे जो भी आपका वैल्यू निकलेगा दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वन गाइस, चलो अगला क्वेश्चन पे आते हैं और समझते हैं, ठीक है।
सो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर एक्सपोर्ट बिल, ठीक है, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन गाइस, ठीक है, ऐसे मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है, सो प्लीज डू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इनटू द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो ये जो सेम रेफरेंसेस के क्वेश्चन है जो अभी हमने पास्ट में डिस्कस भी किए हैं, तो थोड़ा सा इसको दिमाग लगाइए, सॉल्व कीजिए और आपका कमेंट्स के अंदर आंसर करें, और अगर कोई चैलेंज आता है तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। चलो अब अगर अगला क्वेश्चन है आर्बिट्राज ओरिएंटेड, ठीक है, नेक्स्ट केस स्टडी इज बेस्ड ऑन आर्बिट्राज. So currency arbitrage opportunity. So a trader identify the following exchange rate for USD, Great Britain pound in two different market. ठीक है, तो USD and Great Britain pound के दो अलग अलग मार्केट, मार्केट A and मार्केट B आपका, ठीक है। तो पहला आर्बिट्राज. What is arbitrage? It is buying in one market, selling in another market. What we generally do, we generally take the like it is a kind of risk free investment, ठीक है। तो जैसे शिमला में हमने एप्पल परचेज किए 50 रुपए किलो, दिल्ली में 150 रुपए किलो बेच दिया, तो 100 रुपीज का हमें, क्योंकि दो मार्केट के प्राइसेस का जो डिफरेंस था उसका फायदा उठाया। तो सिमिलरली आपका यहाँ पे भी सेम करेंसी पेयर यूएसडी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड इन टू डिफरेंट मार्केट ए, जहां पे ये कोट हो रहा कैसे आपका 1.4000 एंड बाय रेट मतलब बिड रेट आपका एंड आस्क रेट, एंड दिस इज द बाय रेट सेल रेट, सिंपल सा, ठीक है। और in case of market B, it is quoted as 1.3950 and 1.40. अब क्वेश्चन क्या है? Does an arbitrage opportunity exist? If this, how can trader exploit it? मतलब इसका कितना, वो कैसे इससे आपका प्रॉफिट बना सकता है, ठीक है। सो और what is the fraction of value in this particular one? So our answer is first thing, arbitrage opportunity. They can give you one number also. Let's say फॉर $10,000, ठीक है, $10,000 के ऊपर अगर आपको आर्बिट्राज कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल योर आंसर इज यस फॉर दिस वन, ठीक है, आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल, यस। व्हाई यस? बिकॉज व्हाट वी विल डू एज अ ट्रेडर, वी विल बाय हियर, ठीक है, सो दिस इज द बाय रेट, ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपका बाय करेंगे, ठीक है, एंड वी विल सेल इन दिस पर्टिकुलर मार्केट, ठीक है। तो या हम लोग डायरेक्टली अगर आप यहाँ पे भी बेचना चाहोगे, मतलब you'll purchase that particular security or currency pair in market B and you will sell this particular one in market A आपका, ठीक है। तो सिंपल सा आपका, ठीक है। So arbitrage opportunity, yes, the differences and all, the trader market A, the trader can buy USD at ask rate of this and in ask rate of, ये नहीं, गलत उल्टा लिख दिया एक्चुअली यहाँ पे, ठीक है। मार्केट एक्चुअली दिस एक्सप्लेनेशन प्लीज डू इग्नोर दिस, ठीक है। तो क्या करेगा, यहाँ कम पे बाय करेगा, ज्यादा पे बेचेगा, सिंपल सा लॉजिक आपका। इन दोनों का जो डिफरेंस है इनटू अमाउंट, जैसे कोई भी वैल्यू आप कर सकते हैं उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। द ट्रेडर कैन बाय फॉर दिस, हाँ अच्छा यहाँ पे करेक्ट लिखा है, ठीक है, बाय फॉर दिस इन मार्केट ए एंड सेल इट फॉर आपका 1.4050 इन मार्केट बी, मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ पॉइंट, इग्नोर दिस लाइन, हाँ इस लाइन को इग्नोर करो, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्टली आपका ये मेंशन है, ठीक है। सो 0.0100 पर पेयर वी कैन मेक अ प्रॉफिट, ठीक है। तो इतने का हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट कर सकते हैं। जैसे अगर कोई भी वैल्यू उठा करके आप करते हैं, जैसे $1,00,000 पे, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा, बाय होगा, दैट विल बी दिस, ठीक है, दिस विल बी योर बाय, दिस विल बी योर सेल, द डिफरेंस बिटवीन दीज टू विल बी योर प्रॉफिट इन दैट पर्टिकुलर केस, ठीक है। सो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी सिंपल सा आपका, बाइंग इन वन मार्केट, सेलिंग इन अनदर मार्केट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हैजिंग विद फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, XYZ एन इंडियन एक्सपोर्टर रिसीव एन ऑर्डर वर्थ रुपीज 5 lakh $US. The payment will be received in 3 months. XYZ Limited worried about the rupee appreciation and thus want to hedge this particular one. Hedging हम लोग जानते हैं, to minimize the risk against the price fluctuation. Okay. So the current spot rate is 74.905095. The forward rate premium for 3 months is this. Question is, what is the forward exchange rate XYZ Limited should accord to hedge this particular one? कैसे hedge करेंगे हम इसको, आपका spot rate हमारा जो है, ठीक है, that is आपका 74.90 प्लस आपका जो प्रीमियम है सेलिंग साइड का हमें अगर एग्जीक्यूट करना है, सो इट इज 0.55, ठीक है। इन दोनों का जो टोटल है, सो व्हाट दिस, इसको क्या करना चाहिए, $5 लाख आपका सेल करने हैं इस प्राइस पे, सिंपल सा आपका, ठीक है। सो hedging is like कि अगर आपकी बाय पोजीशन लॉन्ग पोजीशन है, सो यू आर मेकिंग अ रिवर्स पोजीशन इन अनदर मार्केट, ठीक है। जैसे स्पॉट में यू हैव दिस, तो अगर आप वहां पे सेल कर देंगे तो उसके बाद देयर विल बी लाइक उसके बाद आप एक
ऐसे सिचुएशन में चले जाएंगे जहां से ना फायदा होगा ना ही नुकसान होगा, ठीक है, वो आपका पैक हो जाएगा, ठीक है। तो 74.90.55, ठीक है, 74.90.55 पर डॉलर आपका इतना हो जाएगा 75.45 इनटू आपका, मतलब इतने पे अगर वो उसको सेल कर लेता है, ठीक है, सो XYZ शुड एंटर इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एट अ रेट ऑफ 75.45 पर डॉलर टू हैज द रुपी अगेंस्ट द रुपी अप्रिशिएशन, ठीक है। और ये जब आपका करेंसी बढ़ता है या घटता है, उसमें एक्सपोर्टर को फायदा कब होता है, इंपोर्टर को कब फायदा होता है, दैट वी हैव डिस्कस इन आवर कॉन्सेप्ट क्लास। तो कॉन्सेप्ट क्लास के बिना अगर आप देखोगे ना तो छोटी छोटी चीजें हैं वहां पे जो यहाँ पे आके आपको हेल्प करेंगे, तो प्लीज आप उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। सो हाउ इनफ्लो ऑफ 10,000 US डॉलर बाय TT, हाँ तो ये कोट करना है आपको। सो इट इज टू क्रेडिट योर एक्सपोर्टर्स अकाउंट, सो व्हाट रेट यू आर गोइंग टू कोट 84.30, ये आपके उसमें भी था, ठीक है। सो 83.30 विल बी बाय रेट, जो आपको कोट करना है, सेल रेट आपका 84.40, ठीक है। नेक्स्ट वन, Alpha Corporation of multinational companies considering enter into interest rate swap agreement to manage its interest rate risk and all. Beta Bank, a financial institution, offer Alpha Corporation of fixed rate loan with an interest rate of 5% per annum. In return, Alpha Corporation agreed to buy Beta floating rate interest and all. The primary motive of Alpha Corporation to enter into this interest rate swap is, so basically what generally they want to do, they want to hedge their position, ठीक है। जैसे अभी हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, उसी के अराउंड आपका ये जो सिचुएशन बेस्ड या आपका कंडीशन बेस्ड है, ठीक है। सो व्हाट शुड बी आंसर फॉर दिस वन, टू hedge against the interest rate fluctuations in currencies आपका, ठीक है। सो दैट इज द वन, आप इसको पढ़ लीजिएगा आराम से भी, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जॉन और मार्केट पार्टिसिपेंट नोटिस प्राइस डिफरेंसेस बिटवीन टू, एक जगह आपका 75 में $1 मिल रहा है, एक जगह आपका 75.10 में, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे बाय करेगा, यहाँ पे सेल करेगा, ठीक है। सो दैट इज जनरली नोन एज arbitrage, ठीक है। सो arbitrage opportunity is generally available in this particular one and we can solve this, ठीक है। नेक्स्ट वन, गिवन द एक्सचेंज रेट, आपका एक्सचेंज रेट दिए गए हैं, ठीक है, USD INR 83.20, यूरो आपका USD, मतलब एक यूरो के लिए एक USD 1.20, ठीक है, एक डॉलर के लिए INR इतना, एक यूरो के लिए INR आपका इतना, ठीक है। सो अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। सो डिटरमाइन देयर इफ देयर इज एन आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी एंड कैलकुलेट द प्रॉफिट फॉर इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ यूरो 1000, ठीक है, तो यूरो के ऊपर आपको ये कैलकुलेट करना। सो हाउ यू विल सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए, स्टेप में आपको बताता हूँ। फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू कन्वर्ट योर फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू कन्वर्ट 1000 यूरो इनटू डॉलर, ठीक है, डॉलर में आप कन्वर्ट करोगे, कैसे करेंगे, डॉलर का रेट कितना दिया हमें, यूएस डॉलर, ठीक है। सो 1000 इनटू आपका 1.12 डॉलर, ठीक है, तो जो आउटकम निकलेगा उतने डॉलर आपके पास होंगे, ठीक है। फिर आपको सेकंड स्टेप में क्या करना होगा, मतलब क्रॉस रेट मल्टीप्लिकेशन जो होता है, ठीक है, डॉलर आपका जो भी इसका आउटकम आएगा, ठीक है, वॉट एवर द आउटकम, उस आउटकम को मल्टीप्लाई करना होगा विद रूपी, ठीक है। रूपी का रेट कितना है आपका, मतलब डॉलर इन दिस 83 पॉइंट, मतलब रूपी मतलब 83.20, ठीक है, तो आपके पास उतने यूरोज हो जाएंगे, ठीक है। देन थर्ड स्टेप व्हाट विल बी, आपके पास यूरोज है, यूरो टू INR, अगर आपको कन्वर्ट करना है यूरो टू INR, ठीक है। सो हाउ विल कन्वर्ट, जो भी यहाँ पे आउटकम निकलेगा, ठीक है, दिस आउटकम लेट्स से इट इज x, सो x डिवाइडेड बाय आपका यूरो INR, ठीक है, 93.20, तो जो भी आउटकम आपका निकलेगा, लेट्स से इट इज y, सो y एक फिगर आपका y है, ठीक है, y जो भी अमाउंट है, दूसरा फिगर आपका क्या होगा, दिस इनिशियल फिगर, ठीक है, 1000 मतलब कितना आ जाएगा ये 1120 समथिंग आपका, तो उन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस है तो देयर इज आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी, कितना अमाउंट होगा वो आपका उन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। सो आई हैव वन अनदर सेशन, सो आई क्विकली गो थ्रू दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है। चलो, तो यूजिंग 1000 यूरो डॉलर आपका करा हमने कन्वर्जन, कितना आया 1120, ठीक है। दूसरा आपका USD टू INR हमने किया 1120 इंटू 83.20, ये कितना आया 93,184, ठीक है। अब INR टू यूरो अगर हम कर रहे हैं, ठीक है, सो 93.140 डिवाइड बाय आपका कितना 93.20, ये रेट हमें कोटेड था 93.20, सो इट केम्स टू 1000
1000.54, यहाँ पे ओरिजिनल कितना था 1000 था, 0.54 का डिफरेंस है. सो 0.54 into 93.20, so that is your arbitrage opportunity. ठीक है. So arbitrage profit is like ये हमारा existing और आपका this is the one. ठीक है. So 1000.54, 1000 जो इनिशियल अमाउंट आपका था यहाँ पे जिसको हम कैलकुलेट कर रहे थे. ठीक है. So 0.54 euro. So 0.54 into 93.20, this is the like मतलब INR 520 रुपीज का आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी. ठीक है. तो क्रॉस रेट मल्टीप्लिकेशन के अंदर आपको जो देखने के लिए मिलेगा. ठीक है. तो दोस्तों ये हमारा पहला सेट आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म एंड आपका फॉरेक्स रेट. तो जहां से आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं. द ओनली थिंग इज आपको इस पीडीएफ का जरूरत बहुत अच्छा होगा आपको. ठीक है. And please try to build your understanding whatever I have delivered in this particular one. As I said, like after like I'll conduct at least 4 session. Yeah, once we're done with this module A, so I'll come up with a 2 to 3 hours kind of webinar or session on our application or YouTube. या दोनों जगह हम लोग उसको कर लेंगे. So where we'll be discussing all these questions with this annotated PDF. ठीक है. जैसे हमने इसमें जो सॉल्व किया सब कुछ, तो वहां पे आपके अगर सवाल होते कैसे किया इन अदर्स विद, और इसके अलावा जो रेफरेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे तो वो करेंगे, तो आपका जो डाउट्स हैं वो हैंडल होंगे और हम बढ़िया से इसमें आपका अपनी एक्सपर्टीज बिल्ड कर पाएंगे. ठीक है. तो आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, और कोई भी डाउट होते हैं तो आप टेलीग्राम पे मुझे कनेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. और कल हम लोग आपका जो डिस्कस करेंगे दैट इज योर यूनिट नंबर 2, LRS and other remittance facilities for individuals. So this is it from my side, guys. Thank you for joining this session. Thank you for watching this session. Bye bye. Take care all. Have a nice day. Thank you.